అతుల రథారూఢుడై మహోదార గతులొప్ప వెనుక రాక్షస భర్త నడువ వరువడి చతురంగ బలములు నడువ వరుసతో నిజ బంధు వర్గంబు నడువ గెలకులదగిసి సుగ్రీవాది కపులు బలువారణములెక్కి పదిలులై నడువ ఘనసేతు బంధాది కథలు గట్టించి పెనుబంద వరమంది బృందముల్ నడువ జనులు సతులు ఘనరథంబుల మీద గరగొప్పిరాగా నడచనయోధ్యకానంద కందళితు లెడనెడ దీవింపహిత పురోహితులు కరిబృంహితంబులుత్కటరధనులు తురగహేషితములు తోరంబులైన భేరీరవంబులు పృథుల ఖడ్గోగ్ర ధారాభిఘట్టన ధ్వనులు వెల్లసగా అక్షీణ కళ్యాణ విభుడు నక్షత్ర పరివృత నవచంద్రుభాతి తీయంబు దీపింప తేజంబు మెరసి అయ్యయోధ్యాపురం వర్ధితో దొచ్చే అప్పుడు సంతోషమంతరంగముల ముప్పొంగవమంగళోన్నతుల్ మెరయ పల్లవహస్తలు పల్లవాధరులు పల్లవారుణ పాద పల్లవోజ్వలులు హరిమధ్య సమమధ్యలమృతాంశుముఖులు కరిరాజగమనలు కమలలోచనులు అలినీల కుంతలాంబుజ గంధులు ఎలగీద బోడు లింపెక్క నందంద కైపేసి చనుదెంచి కామినీ మణులు ప్రాసాద గోపుర ప్రతలందునుండి పుణ్యాలోకనంబుల పుణ్యసతులు పుణ్య పుష్పాక్షతంబులు చల్లుచుండ మేడలపై నుండి మీనాక్షులోలి బ్రోడలై తమ తమ బోటుల తోడ ఈసున విన్నవాడి పుణ్యగనుడు చేసిన చేతలు చెప్పనచ్చెరువు తను నిదిర్చిన మాత్ర తాటక జంపే అనఘుడై కౌశికు యాగంబుగాచే మహాచాపంబు విరిచే దర్పించే జమదగ్ని తనయు భంగించే అహితలోకాంతకుండంతటి పనులు సహజ శూరుడుగాక జనజేసెగాక అమ్ముద్దు ప్రాయంబు నందు కానలకు పొమ్మన్న తపసి అయిపోయ వేడుకను పోయి జగద్ధిత పుణ్యకృత్యములు సేయనెవ్వడజాలు చేవదీపింప వనధి బంధించి రావణు బ్రోతుంచి ధనుజుల పెక్కెండ్ర ధరణిపై కూల్చే తన తండ్రి పశువున కవిలి కానలకు మునివృత్తి చనునాటి ముద్దు ప్రాయంబులు ఈ పెద్ద చందంబులెన్ని చందమ్ముల దీపించుచున్నవి తెలియజూచితిరే పర్జన్యునవలీల భంజించి మరల దర్జించి శక్తి దర్పించినట్టి ఆ మేఘనాదును గ్రాజిలో జంపే సౌమిత్రి కంటిరే చపలాక్షులారా జయత్యతి బలో రామ లక్ష్మణశ్చ మహాబలః రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః దాసోహం కౌసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్ధినాం శ్రీవేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం అభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తల్లుల చరణ పద్మములకు మృక్కి प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के वीरभद्र स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री ने यहाँ पूजा अर्चना की। ये मंदिर जो रामायण कालीन इतिहास से जुड़ा है, ये मंदिर जहाँ
जटायु ने अपने प्राण त्यागे थे। ये मंदिर जो बेहद प्राचीन है और प्राचीन वास्तुकला का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है, और रामायण से जुड़ा है ये मंदिर, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से देश भर में रामायण से जुड़े अलग अलग स्थान हैं जिनकी महत्ता को समझना और आगे बढ़ाना बेहद आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आंध्र प्रदेश के दौरे का आरंभ इसी मंदिर से किया था, और इस मंदिर में पूजा अर्चना के ये दृश्य हो जो हम सीधे आप तक लेकर आ रहे हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री ने रंगनाथ रामायण की चौपाइयाँ भी सुनी। इससे पहले हम जानते हैं कि कैसे नासिक में प्रधानमंत्री पंचवटी गए और वहाँ भी उन्होंने रामायण के श्लोक सुने। और आज प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के वीरभद्र स्वामी मंदिर में हैं और यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना करने के बाद रंगनाथ रामायण की चौपाइयाँ भी सुनी हैं। देश की सुख समृद्धि, शांति समृद्धि की कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के वीरभद्र स्वामी मंदिर में। अजय, आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, अभी मैं जैसे बात कर रही थी पंचवटी की, पंचवटी में प्रधानमंत्री ने मराठी में रामायण के श्लोक सुने। आज आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी में प्रधानमंत्री रंगनाथ रामायण सुन रहे हैं। ये जो अलग अलग प्रसंग रामायण के देश के अलग अलग स्थानों से हमारे सामने आ रहे हैं, ये भी साबित करते हैं, जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, राम संपूर्ण देश के हैं, संपूर्ण देश राम का है। बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी, और यही राम तत्व पूरे देश को एक साथ जोड़ता है, क्योंकि भगवान राम की जो यात्रा रही वो उत्तर से दक्षिण की ओर रही, और भक्ति का प्रादुर्भाव दक्षिण में माना जाता है। तमिल आलवार संतों ने भक्ति का प्रादुर्भाव माना, और श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि भक्ति वहां से पहले चलती हुई वो महाराष्ट्र पहुंची, फिर गुजरात पहुंची, गुजरात से होते हुए वृंदावन पहुंची, और उसके बाद उन्होंने उत्तर की यात्रा की। तो आप देखिए दक्षिण और उत्तर का संगम कितना अद्भुत है भारत में, कि भक्ति का प्रादुर्भाव होता है दक्षिण में, वो भगवान की तरफ जो कि उत्तर में पैदा होते हैं उसकी तरफ बढ़ती हैं, जहाँ पर रामकृष्ण पैदा होते हैं उत्तर प्रदेश में, और भगवान राम उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं भक्ति से मिलने के लिए। तो ये भक्ति और भगवान का मिलन है जो उत्तर और भारत को जोड़ता है, जो द्रविड़ और हिमालय की वादियों को जोड़ता है। स्पष्ट तौर पर जो रामायण के रचनाकार हैं, अलग अलग भाषाओं में जो रामायण प्रचलित है, और भगवान राम की कथाएं न केवल देश बल्कि कई सारे विदेशों में भी अलग अलग कथानकों के माध्यम से आज मंचित की जाती हैं, लोग सुनते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं। बहुत ही अद्भुत तत्व है, और इसी तत्व को लेकर के, जो कि कल्याण का तत्व है, जो समत्व का तत्व है भगवान श्री राम के जीवन चरित्र में, क्योंकि हम चित्र की पूजा नहीं करते, हम भगवान राम के चरित्र की पूजा करते हैं, और उसी चरित्र को केंद्र में रखते हुए आज चाहे वो महाराष्ट्र का काले राम मंदिर हो, या फिर वीरभद्राचलम इस वक्त लिपाक्षी मंदिर, जिसको कि आप हैंगिंग पिलर्स के नाम से आज युवा पीढ़ी जानती है, जाकर के लोग वहां पर उन खंभों के नीचे अपने कुछ कपड़े निकालते हैं और देखते हैं कि अरे ये कैसे 70 खंभे कैसे हवा में लटके हुए हैं। अद्भुत वास्तु का भी एक नमूना है। तो एक तरफ तो आप अपने समृद्ध विरासत पे गौर कर सकते हैं, इतनी समृद्ध वास्तुकला पर गौर कर सकते हैं, जहाँ पर आज भी 70 पिलर आपको हवा में लटके हुए दिखाई देते हैं, जो पूरे मंदिर को एक अनोखा बनाते हैं। पूरे विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। और दूसरी बात, इसको अगर आप रामायण के कथानकों के साथ जोड़ें, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि जो रंगनाथ हैं वो अयोध्या के ही कुलगुरु हैं, जिनको भगवान राम ने कहा कि अब मेरा राज्याभिषेक हो गया है, अब तो मैं यहाँ का राजा हूँ, तो आप मेरे कुलाधिपति जो कि रंगनाथ भगवान हैं उनको आप लेकर के जाइए। हालांकि विभीषण उनको ले नहीं जा पाए और श्रीलंका में, और आज भी रंगनाथ भगवान का जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ, श्रीलंका की तरफ है। विभीषण के कहने पर वो वहीं पे ठहर गए, और आज वीरभद्र के मंदिर में मोदी जी ने जो पूजा अर्चना की है, वीरभद्र का संबंध उस यज्ञ के साथ है जो जिसमें सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो आप समझिए भगवान राम जो कि विश्व स्वरूप हैं, जो कि यज्ञ स्वरूप है, अगर यज्ञ में बिना कल्याण की भावना के अगर कोई यज्ञ करता है तो भगवान शिव उसको विध्वंस भी करते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो कि दुनिया के विध्वंस के लिए अगर आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, कोई यजन कर रहे हैं, तो हमारे शास्त्रों में ये भी मान्यता है कि स्वयं उसको भगवान आकर के नष्ट करते हैं। अगर आप मानव कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं तो उसमें आपकी सहायता करते हैं। ये सारे कथानक हमारे जीवन को प्रेरणा देते हैं, और भगवान श्री राम के अलग अलग केंद्रों के जरिए, अलग अलग रामायणों के जरिए मोदी जी इस वक्त पूरे देश को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि केवल 6 दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, और आज ही प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह है अयोध्या में शुरू हुआ है। अयोध्या का बहुत ही अद्भुत संयोग है
दक्षिण में खासतौर पर आंध्र प्रदेश की धरती जहाँ पर भद्राचलम राम पूजे जाते हैं, और जटायु की धरती जिसमें आपको राम का समत्व दिखता है। और स्वयं भगवान श्री राम ने अंत्येष्टि क्रिया की, वो सारी क्रियाएं की जो उन्होंने स्वयं अपने पिता के मरने पर नहीं की, लेकिन अपने पिता की गति दी। और श्री जटायु जी भगवान राम का ही रूप लेकर के, हरि रूप लेकर के उन्होंने धरती से वैकुंठ की ओर प्रयाण किया। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि भगवान, चाहे वो अधम से अधम पक्षी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे वो गिरिवासी हो, सबके साथ सबको लेकर के जो राम चले हैं और सभी के जीवन को आलोकित करते चले हैं अपने चरित्र के द्वारा, वो हम सभी को कुछ न कुछ प्रेरणा देता है। और यही प्रयास कर रहे हैं कि वो राम तत्व कौन सा है, वो अध्यात्म का तत्व कौन सा है जो संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधता है। वही तत्व है मानवता का, जिससे भारत प्रसारित करता रहा है। भारत यानी ज्ञान में रत वो लोग जो कि इसी ज्ञान को पूरी दुनिया तक प्रसारित करते रहे। और इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम विश्व गुरु हैं। विश्व जिसकी परिकल्पना की जाती है तीनों लोकों में। आज हम ये मानते हैं कि 183 देशों का समूह विश्व है, लेकिन हमारी सनातन परंपरा में तीनों लोकों को विश्व कहा जाता है। और भगवान विश्व के सहस्त्र नाम में उनका नाम ही, पहला नाम ही विश्व है। तो जो विश्व के बारे में जानते, जो विश्व के बारे में जाने, जो कि जाने की गति क्या है इस जीवन की, वही विश्व गुरु होता है। और भारत के अलावा ऐसा कोई देश दिखता नहीं है। और इन्हीं कड़ियों को जोड़ते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। अजय, साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, उन स्थानों के बारे में लोग जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे में रामायण के अलग अलग प्रसंगों से जुड़े ये प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारी आज के युवा पीढ़ी को भी इससे जुड़ने का एक अवसर मिल जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो इन मंदिरों के बारे में सर्च करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की महत्ता भी इससे परिलक्षित होती है। तो मैं बहुत ही एक रोचक तथ्य आपको बताना चाहता हूँ इसी संदर्भ में, ममता जी, जो आपने उठाया। गूगल पे अभी आप जाके देखिए तो सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन में रिपोर्ट गूगल की है कि अयोध्या में सबसे पहले सबसे जल्दी कैसे पहुंचा जा सकता है। इस सवाल को लोगों ने किया है। जैसे ही लोगों को पता चला कि एक भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो लोगों ने हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सड़क के जरिए कैसे पहुंचा जाए, इन तमाम रास्तों की खोज करने लगे। और सबसे ज्यादा गूगल में जो युवाओं ने सर्च किया कि हाउ टू रीच अयोध्या इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम। इस तरह से आप राम वन पथ गमन जो निर्माण किया जा रहा है, जिसे आप रामायण सर्किट के नाम से जानते हैं, इसी तरह से कई सारे सर्किट का निर्माण किया जा रहा है। तो रामायण गलियारे का निर्माण जो किया जा रहा है, जो कि अयोध्या से निकलता है, आपके श्रृंगेरपुर, प्रयाग होते हुए चित्रकूट पहुंचता है, और उसके बाद उसको और उड़ीसा तक ले जाया जाता है। उड़ीसा के बाद झारखंड होते हुए, और फिर नीचे वो तेलुगु, जहां पर आप अभी इस वक्त देख रहे हैं लेपाक्षी का मंदिर, वहां भी जाता है। और उसके बाद फिर वो श्री रामेश्वरम की यात्रा करता है। तो ये जो राम पथ गमन है, मुझे लगता है कि युवा एक्सपेडाइट करना चाहेंगे उन पद चिन्हों को, उन मंदिरों के जरिए, उन प्रतीक चिन्हों के जरिए राम को फिर से खोजने के प्रयास करेंगे। क्योंकि 9 लाख 10